Okay, first of all, morning to all of you. Let us start by the grace of great Bible, great God. Our today's topic is crystal system. In the last two lectures, we have discussed the space lattice, we have discussed the basis, and we have discussed the crystal structure. What is crystal structure? Crystal structure is equal to space lattice plus a basis. What is basis? Basis is a cluster of atoms. And what is space lattice? It is nothing but it is a collection, or we can say periodic and regular arrangement of lattice points. Lattice points or lattice sites. Okay, that lattice points are just virtual points. And we can have a monatomic crystal. अगर basis पे एक atom है, if basis contain one atom, then it's a monatomic crystal. If basis contain two atoms per lattice point, that is a diatomic. Similarly, if three atoms are there, triad, tetra, and so on and so forth. And in the last lecture, we have discussed the translation factor. We have discussed the translation factor, which basically connect one lattice point to the another lattice point. And we have also discussed the unit cell. What is unit cell? It is basically a building block. ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी क्रिस्टल में. जैसे व्हाट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल? ब्रिक्स. तो ब्रिक्स क्या होती है? बार बार रिपीट होती है. उसी तरह पे हमारा यूनिट सेल होता है. तो आज हम करते हैं क्रिस्टल सिस्टम. ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम. ठीक है. सो इन द क्रिस्टल सिस्टम वी हैव अ टोटल 7 काइंड ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. ओके, फर्स्ट इज कॉल्ड क्यूबिक. ठीक है, ऑर्डर आप कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो, पहले आप इसको ले सकते हो. तो ठीक है, मैंने क्यूबिक को लिया क्योंकि बिकॉज हम क्यूबिक पे ज्यादा काम करते हैं. ठीक है, first one is cubic, then monoclinic, what is orthorhombic, fourth is triclinic, fifth is tetragonal, sixth is trigonal, seventh is the hexagonal. Okay, and these are the unit cell A, B and C are called the sides of the unit cell, and alpha, beta, gamma are the angles between the crystallographic axis. Alpha is the angle between A and B, beta is angle between B and C, and gamma is angle between C and D. Okay, so see, for the different system we have a different relations between A, B and C and alpha, beta, gamma. See, for the cube पे क्या होता है? Cube means cube का मतलब बोलो, all the three sides are same. और अल्फा बीटा गामा में एंगल कितना है? 90 डिग्री. क्या है? 90 डिग्री. मोनोक्लिनिक में ये है. ठीक है, हेक्सागोनल में ये है. ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू 90 बट गामा इज इक्वल टू 120. So this is used for the hexagon. Okay, so basically we do more for the cubic system. Okay, so please take the diagram. बना लिया? आगे करें. हम करेंगे, देखो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा कौन सा जो स्ट्रक्चर होता है ज्यादा स्टेबल होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, द स्ट्रक्चर विच इज मोर स्टेबल वी कैन से दैट इज अ मोर थर्मोडायनेमिकल स्टेबल. और कौन सा स्टेबल होगा? जिसकी सिमेट्री ज्यादा होगी. आई गेट योर पॉइंट. जिसकी ज्यादा सिमेट्री होगी वो ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल. जो ज्यादा स्टेबल वो उतने ज्यादा एक्सेप्टेबल. More the symmetry of the crystal, more the stability or thermodynamical stability of that system, and more is the acceptability of the system. So please write a note. More symmetry means more abundance. More symmetry मतलब मोर अबंडेंस. अबंडेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अबंडेंस? क्या होता है भाई? क्या होता है अबंडेंस का मतलब? जो ज्यादा मिलता है. ठीक है, एंड मोर सर्वाइवल. मोर स्पिरिटी मतलब मोर थर्मोडायनेमिकल
stable. More thermodynamical. More thermodynamical stable. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? सिमेट्री चाहिए। क्या चाहिए? सिमेट्री। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिमेट्री किसकी होती है? क्यूबिक की। किसकी होती है? क्यूबिक। तो नंबर 2 लिखिए। इसलिए मैंने पहले क्यूब लिखा था, क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, दिस लाइन क्यूबिक हैज मैक्सिमम सिमेट्री। क्यूबिक हैज मैक्सिमम सिमेट्री cubic has maximum symmetry elements and that is 23. कितनी होती है उसमें सिमेट्री? 23. cubic has maximum symmetry elements. cubic has maximum symmetry elements that is 23. ठीक है, तो नोट नंबर 3 लिखिए। system with more symmetry is more stable. सिस्टम विद मोर सिमेट्री इज मोर स्टेबल। जिस सिस्टम की सिमेट्री ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। एंड सिस्टम विद लेस सिमेट्री, सिस्टम विद मोर सिमेट्री इज मोर स्टेबल। एंड सिस्टम विद नो सिमेट्री इज अनस्टेबल। उसके पास कोई सिमेट्री नहीं है, एंड सिस्टम विद नो सिमेट्री इज अनस्टेबल एंड इट इज नॉट, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड डज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो संभव ही नहीं है। समझ आई कि नहीं आई? समझ आया? जिसकी ज्यादा सिमेट्री होती है, हाँ, सिमेट्री का मतलब समझते हो आप? सिमेट्री का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने उसको रोटेट, सिमेट्री कई तरह की हो सकती है। रोटेशनल सिमेट्री भी हो सकती है, इन्वर्शन सिमेट्री भी हो सकती है। मैंने रोटेट किया, सिस्टम चेंज नहीं हुआ। इन्वर्शन का मतलब क्या होता है? उल्टा किया तो भी सिस्टम चेंज नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रीज। क्या बोलते हैं? सिमेट्री। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको 360, मान लीजिए यही है कोई, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको 360 पे रिवॉल्व किया और आफ्टर द रोटेशन ऑफ 360 डिग्री वो उसी जगह पे आ गया जो जहां पे पहले था। तो हम क्या कहेंगे? दैट ऑब्जेक्ट पोजेस अ सिमेट्री। दैट ऑब्जेक्ट पोजेस अ कौन सी सिमेट्री? रोटेशनल। कौन सी? रोटेशनल सिमेट्री। ओके, तो प्लीज राइट फॉर सिमेट्री। Symmetry operations can be inversion भी हो सकती है, कॉमा रोटेशन, और इन्वर्शन। जहाँ इन्वर्शन और रोटेशन हमारे सेम थिंग। ठीक है, अब रोटेशन पे हेडिंग बनाओ। रोटेशन सिमेट्री क्या होती है? रोटेशन का मतलब क्या है? मेरे पास कोई क्रिस्टल, आई हैव अ क्रिस्टल एंड आई रोटेट द क्रिस्टल अबाउट its axis with some angle. Let us say that angle is 360 degree. Let us say that angle is or after 360 degree it will not change. It will exactly the same as that before the rotation. तो हम क्या कहेंगे? Then we will say that तो इस सिस्टम के पास क्या है? सिमेट्री है। ठीक है, तो लिखिए फिर। And crystal is said to possess, and system is said to possess, जहाँ एक क्रिस्टल is said to possess axis of symmetry, एक क्रिस्टल is said to possess an axis of symmetry if the crystal is rotated about an axis. If the crystal is rotated about an axis, comma, the atomic arrangement about the axis, comma, the atomic arrangement looks the same
द एटॉमिक अरेंजमेंट लुक्स द सेम एज दैट बिफोर द रोटेशन। तो जो रोटेशन से पहले था, मान लो आपकी क्लास है, जैसे फोटो नहीं होती है, देखिए इधर देखिए, ये मेरे हम मोबाइल पे करते हैं ना, फोटो होती है, अगर फोटो को हम 90 डिग्री की रोटेशन देते हैं क्लॉकवाइज, फोटो इस तरफ आ जाती है, फिर 180 की देते हैं, 90 और देते हैं, फिर उल्टी हो जाती है, फिर 90 और दे देते हैं, फिर इस तरफ हो जाती है, चौथी बार करते हैं तो सीधी हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, आफ्टर 360 रोटेशन द फोटो लुक्स लाइक द सेम। ऐसे होता है ना, फोटो खींचते कई बार उल्टी हो जाती है, होती कि नहीं होती है, पहले फोटो ऐसी होती है, फिर घुमाते हैं, फिर ऐसी हो जाती है, फिर ऐसे हो जाती है, फिर ऐसे, ये 90 और 90, 180, 180 90, 270, 270 90, 360। पहले सीधी थी, फिर इस तरफ चली गई, फिर ऊपर चली गई, फिर इस तरफ चली गई, फिर नीचे चली गई, फिर समझ आई कि नहीं आई। तो अगर सिस्टम का आफ्टर रोटेटिंग सम एंगल इट्स लुक्स लाइक द सेम, तो हम क्या कहेंगे, इसके पास सिमेट्री है कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट ऑपरेशन। और हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया यहाँ पे, सिमेट्री। कौन सा लगाया, रोटेशन। कौन सा लगाया, तो इस सिस्टम के पास कौन सी सिमेट्री हुई, सिमेट्री ऑफ रोटेशन, सिमेट्री ऑफ रोटेशन ऑफ, ठीक है, रोटेशन सिमेट्री। जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे, हमारे पास कई बार मिरर इमेज लेते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट की, और वो उस पर सुपर इम्पोज कर जाए, तो कहते हैं इसके पास भी सिमेट्री है, इसके पास भी क्या है, सिमेट्री। इफ इट सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज, समझ आएगी नहीं आई। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, कुछ वर्ड्स चेंज नहीं होते, जो वर्ड्स चेंज नहीं होते दैट वर्ड्स पोजेस द सिमेट्री, और जो चेंज हो जाते हैं दैट डज नॉट पोजेस द सिमेट्री। ये कौन सी होती है, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। ओके, लिखिए, सेकंड लिखिए, ठीक है। अच्छा, इसी में लिखिए, वी हैव अ, अब कितनी तरह की सिमेट्री होती है, वी हैव अ वन फोल्ड रोटेशन एक्सिस, वन फोल्ड रोटेशन सिमेट्री, वन फोल्ड रोटेशन सिमेट्री, टू फोल्ड, वन फोल्ड, टू फोल्ड, वन फोल्ड, टू फोल्ड, थ्री फोर, 6 और 7, 3 4 6 और 7, 3 फोल्ड, 3 4 6 7, 5 नहीं होती। वन फोल्ड का मतलब देखिए क्या होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने 360 का रोटेशन दिया, कितना दिया, 360 का, एंड आफ्टर द रोटेशन ऑफ 360 डिग्री इट लुक्स लाइक द सेम, तो वो कौन सी सिमेट्री हुई, वन फोल्ड। कितनी हुई, वन फोल्ड। ठीक है। नंबर 2, टू फोल्ड। टू फोल्ड में कितना होगा, डिवाइडेड करता 2 से 60/2 180, कितना होगा, 180। तो लिखो, let an object shows identical figure, let an object shows the identical figure after a rotation of 180 degree, after rotation of 180 degree। ठीक है, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को 180 का रोटेशन दिया, और 180 का रोटेशन देने के बाद वो ऑब्जेक्ट वैसा ही रहा जैसे पहले था, तो उसके पास कौन सी सिमेट्री हुई बेटा, टू फोल्ड रोटेशन सिमेट्री। कौन सी हुई, टू फोल्ड रोटेशन सिमेट्री। ठीक है। थर्ड, थ्री फोल्ड में कितना होगा, 120, शाबाश, 120। 4 में कितना होगा, 4 में कितना होगा, 90, 4 में 90, 6 में कितना होगा, 6 में 60, ठीक है, 6 तक ही 6, ठीक है। आगे हार भी आ जाती है,
बट हमारा काम इससे चल जाएगा, ठीक है। आगे हायर ऑर्डर रोटेशन सिमेट्री भी आ जाती है, तो 6 तक, ठीक है। तो समझ आया? आफ्टर रोटेशन ऑफ 360 डिग्री इफ द ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक द सेम then that object is said to possess a one-fold rotation symmetry. If an object if we rotate the object through an angle 180 degree, then and the object looks like the same, तो object के पास कौन सी है? Two-fold. किसी भी object को अगर हम 120 डिग्री पे घुमाते हैं, रोटेशन देते हैं, अगर object चेंज नहीं होता तो that have a three-fold rotation symmetry. 90 पे 4 और 60 पे 6. Simply we have to divide 360 by 6, तो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। समझ आया? Benedict, this Benedict, are you getting this? We just rotate the crystal through this angle 180 degree. If the crystal possesses the same, object possesses the same, then that crystal is said to possess a two-fold rotation symmetry. Okay. आगे बात करेंगे क्यूबिक की, क्यूबिक लैटिस की। इसकी बात करेंगे क्यूबिक लैटिस की, ठीक है। 7 तरह के हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है ना। सबसे पहला कौन सा है? क्यूबिक। और क्यूबिक की सबसे की क्या खासियत है? व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट द क्यूबिक? इट हैज अ मोर नंबर ऑफ सिमेट्रीज, इट हैज अ मोर नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। आई मीन टू से अगर आप इस पे 23 ऑपरेशंस लगाओगे तो ये चेंज नहीं होगा। रोटेशन भी लगा दिया, इन्वर्शन भी लगा दिया, उल्टा भी कर दिया, समझ आएगी? यही समझ आई? तो मोर द नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, मोर इज द थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मोर इज द थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी मींस मोर इज द एक्सेप्टेबिलिटी, मोर इज द एक्सेप्टेबिलिटी। जितनी सिमेट्री ज्यादा होगी उतना स्टेबल ज्यादा होगा, जितना स्टेबल ज्यादा होगा उतनी एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी। नाउ लेट अस डिस्कस द क्यूबिक सिस्टम। सी क्यूबिक में हमारे पास 3 तरह के आते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक, second is called a body centered cubic, third is called a FCC. आपने पढ़ रखा है ना? face centered cubic. So let us discuss. ये फटाफट बताता हूँ ना मैं। आपने कर रखा ना ये? Yes sir. है ना? क्यूबिक लैटिस पे क्या होता है बेटा? नंबर 1 सिंपल क्यूबिक, नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको बीसीसी बोल देते हैं, इसको एससी बोल देते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आज थोड़ा ज़्यादा हिंदी में ज़्यादा चलो क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको पता लगनी चाहिए, ठीक है। सिंपल क्यूबिक, ठीक है। बनाइए क्यूब, बनाइए। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा? सिंपल क्यूबिक में देखिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, ठीक है। दिस द क्यूबिक। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे एटम्स कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स पे। कितने होते हैं? कॉर्नर्स पे। तो कितने कॉर्नर्स होते हैं इसके? 8। देखो कौन से वाला? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आगे का फेस है, ये पीछे का फेस है। जैसे वो नहीं होती है डाइस, वी हैव अ डाइस इज द फाइनल एग्जांपल ऑफ द क्यूबिक। तो 8 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 8, ठीक है। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? कितना होता है? ए क्यूब। कितना होता है? ए क्यूब, साइड का क्यूब है ना। ठीक है। अच्छा, बॉडी सेंटर में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इसके किस पे होते हैं? कॉर्नर्स पे। और एक इसमें होता है बॉडी सेंटर, ठीक है। बॉडी सेंटर
ठीक है, बॉडी सेंटर, ठीक है। और एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है, इसके फेस कितने होते हैं, 6, आगे वाला पीछे वाला 2, तीसरा चौथा 5, 5 में ऊपर वाला, छठा नीचे वाला। सो वी हैव अ 6 फेस ऑफ द क्यूब। सो लेट अस मेक अ क्यूब फर्स्ट। ये ध्यान से समझना, ठीक है, एफसीसी। हाँ जी, व्हाट आर द 8 सेंटर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, सबसे पहले जो आगे वाला फेस है, आगे वाला फेस, डाइस देखा ना आपने, ये डाइस द फ्रंट फेस, उसका सेंटर कहाँ पे होगा? ये वाले का, ये वाले का, इसका होगा यहाँ पे। तो दिस इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट क्यूब। अब इसके पीछे वाला कौन सा क्यूब है? आगे के जस्ट पीछे वाला, वो ये वाला फेस होगा, ये वाला। इसका सेंटर कहाँ पे है? इसका सेंटर होगा यहाँ पे, है ना? 2 आगे पीछे कर लिया। अब कहाँ पे जाना है? साइड वाला, थर्ड और फोर्थ। साइड वाला बेटा कौन सा होगा? ये वाला, ये इसका यहाँ पे आएगा सेंटर। फोर्थ का कहाँ पे होगा? ये वाला, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। 4 बचे, 2 ऊपर वाला और नीचे वाला। नाउ वी हैव इसका कहाँ पे होगा सेंटर? यहाँ पे, और नीचे वाले का सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ। समझ आया? Are you getting this? So we have 8 atoms at the corners of the points, corners of the lattice of the cube, and 6, 1 2 3 4 5 6 atoms at the center of the face. Center of the face, that is why it is called the face centered. हाँ जी, इसके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1 एटम्स पर यूनिट सेल, इसके 2 होते हैं, इसके 4। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ठीक है। अब पता है इसके कैसे होते हैं? 1 कैसे होता है? कैसे होता है? देखो, जैसे ये है, ठीक है ना, 8 into 1/8, ठीक है ना। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्योंकि और भी यूनिट सेल से जॉइंट है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8। कितना हो गया? मतलब ये एक वैसी बात है जैसे मैंने आपको एक रोटी दी, उसको खाने वाले कितने बंदे हैं? 8 बंदे। तो हर एक बंदे के हिस्से में कितनी आई? 1/8, ठीक है। इसी तरह इसके 2 कैसे हुए? ये सारे 1/8 कॉर्नर्स पे, और ये वाला, ठीक है, तो 1/2, ठीक है। इसका इसी तरह से 4, ठीक है, 4, क्योंकि समझ आएगी ना, ये जो इसका फेस पे जो है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 1/2। कितना होता है? 1/2, 1/2। तो 1/2 into 6 कितना आया? 3, 3 + 1 4, इसका 4। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर द सिंपल क्यूबिक इज 1, फॉर बॉडी सेंटर्ड इज 2, एंड फॉर द फेस सेंटर्ड इज 4। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोई भी एटम अपने कितने नेबरिंग एटम के साथ टच करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक एटम है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? कितना आया? 6 आया। कितना आया? 6। तो बेटा इसका होता है सिंपल क्यूबिक का होता है 6, ठीक है। इसका होता है 8, तो इसका होता है 12। याद है तुम्हें? वेरी गुड, 12। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 1 फॉर द सिंपल क्यूबिक, 2 इज फॉर द बॉडी सेंटर्ड, एंड 4 इज फॉर द फेस सेंटर्ड। सिमिलरली द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द सिंपल क्यूबिक इज 6, 8 फॉर द बॉडी सेंटर्ड। इस पे 8 एटम्स एक सेंटर एटम को कनेक्ट टच करेंगे, इस पे 12, इस पे कितना करेंगे? 12। Any doubt from this side? Any doubt?
अब हम बात करेंगे मिलर इंडेक्सेस की। क्या बात करेंगे? प्लेन पता है प्लेन क्या होता है? व्हाट इज प्लेन? सी this is x y z. This is a three dimensional Cartesian coordinate system. ठीक है, so this is a plane. This is a plane. This is the x, the plane. The plane is cutting at x axis at point A, and on the y axis B, and on the z axis C. So OA is called x intercept, OB is called y intercept, and OZC is called z intercept. ठीक है, it's called a z intercept. I can say it as a, this is A, this is B, this is a C. Okay, A, B, C. Okay, can you tell me the equation of plane? Can you tell me the equation of plane? क्या होती है? विशाल मौर्य, क्या होती है? The general equation is ax plus by plus cz plus d is equal to 0. That is the general equation of a plane. General equation of a plane, or we can say आप फॉर्म भी ले सकते हो, ax plus by plus cz plus d is equal to 0. That is the general equation of a plane. Okay, समझ आई? This is the general equation of a plane. ठीक है, now I will define Miller indices. What is Miller indices? Miller indices का मतलब ये होता है, it is a set of Miller indices is a set of parameters, so it's a set of the numbers which basically determines the orientation and direction of a plane. जो किसी भी प्लेन की डायरेक्शन बताते हैं, और क्या बताते हैं? हमें ओरिएंटेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? ओरिएंटेशन बताते हैं। तो प्लीज राइट, मिलर इंडिसेस आर दी थ्री स्मॉलेस्ट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय h, k, l. मिलर इंडिसेस आर दी थ्री smallest possible integers. Three smallest possible integers. These are the three smallest possible integer which have the same ratios, which have the same ratio as the reciprocal of the intercepts, which have the same ratio as the reciprocal of the intercepts, reciprocal of the intercept of the plane concerned in three axes, concerned in a three axes. अभी इस डेफिनेशन का मतलब आपको समझ आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना कि क्या रेसिप्रोकल क्या है, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज मिलर इंडिसेस? इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लेन. सो प्लीज राइट इन नोट, मिलर इंडिसेस determine the position and orientation of lattice plane. Position and it determines the position and orientation of a lattice plane in a crystal. तो हमें क्या बताते हैं? ओरिएंटेशन में क्या आता है? डायरेक्शन भी आ जाती है, पोजीशन भी आ जाती है. तो पोजीशन एंड डायरेक्शन हमें क्या बताते हैं? पोजीशन एंड डायरेक्शन. तो सी, अगर मान लीजिए एक प्लेन ये है, इस प्लेन के साथ ये प्लेन इसके पैरेलल है, ये थर्ड प्लेन उसके पैरेलल है, तो सभी प्लेन के जो मिलर इंडिसेस होंगे वो क्या होंगे? सेम. क्या होंगे? सेम. ठीक है, ऑल द पैरेलल प्लेन्स हैव द सेम मिलर इंडिसेस, हैव द सेम. जैसे दो पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? सेम होती है ना. दो पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? सेम. मतलब फॉर्मूला ऑफ स्लोप कई फॉर्मूले होते हैं. एक फॉर्मूला होता है n इक्वल टू tan थीटा. पैरेलल लाइंस में थीटा क्या आ गया? 0, तो tan 0 0. ठीक है. दूसरा फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का? y2 माइनस
अपॉन x2 माइनस x1। तो ये होती है इन कोऑर्डिनेट फॉर्म्स, इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। तीसरा क्या होता है? वो तो एक ही बात होगी, डेरिवेटिव। क्या होती है? डेरिवेटिव। m इज इक्वल टू dy अपॉन dx। अगर आपके पास y कोई फंक्शन है, आपके पास y कोई फंक्शन है, अगर आप उसका डेरिवेटिव ले लोगे तो दैट डेरिवेटिव विल गिव मी अ स्लोप। क्या देगा हमें? स्लोप। डेरिवेटिव में क्या देता है? स्लोप देता है। ठीक है, हो जाएगी नहीं यही? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो क्या था, y is equal to x plus 4, so what is the slope? dy by dx is equal to 2x। ठीक है, and I want to calculate the slope at x is equal to 4, तो आंसर कितना आया? dy upon dx at x is equal to 4 is equal to 2 into 4, that is 8। तो हमें मिलेंट इंडिसेस क्या बताते हैं? जोर से बोलो, क्या बताते हैं? पोजीशन। क्या बताते हैं? पोजीशन, ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन। पोजीशन है, जोर से बोलो यार, मिलेंट इंडिसेस पक्का नहीं आना। ठीक है, जोर से बोलो, ओरिएंटेशन, पोजीशन एंड हाउ मच टाइम लेफ्ट? ओके, तो थैंक यू सो मच for the tomorrow we will discuss the topic of Miller indices and we will do a numerical based on the Miller indices. Thank you so much.